Hello, everyone. Welcome. Welcome back so soon with me live stream and something currently. And I was thinking to start marketing, but because marketing is a big chapter, I think I should do it tomorrow morning. है ना? अभी छोटे छोटे चैप्टर निपटा देता हूँ सो दैट हम कंप्लीट कर सकते हैं today's day. फिर कल से जब एक तरह से वो बनेंगे थोड़ी सी मोमेंटम होगा देन आई विल do the other chapter. So let's complete the syllabus. Concept of management, meaning of effective and efficiency, objectives of management, importance of management, because of क्या है concept है meaning effective efficiency का objective है importance है examine the nature of management as a science art profession, understand the role of top, middle and lower levels of management, explore the functions of management, discuss the concept and characteristics of coordination and importance of coordination. The syllabus पहले चैप्टर है सबने पढ़ा हुआ होता है सो यू विल डू इट थोड़ा सा जल्दी ओके अच्छा इसके बाद में पढ़ता ही वरना समझ थोड़ा सा तब कैसे दे रखा है ये थोड़ी लाइन है ओके ये समझ के जाओ फिर धीरे देखो सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन कुछ लक वर्क नहीं चल पाता ठीक है बाय चांस कुछ काम नहीं होता है दे हैव टू go through a deliberate process called management. So there are three different definitions of management. So really, management is a process of designing environment in which individuals working together and work efficiently to selected aims. Management is defined as a process of planning, organizing, or pursuing and controlling. As actually there is staffing, staffing directing. An organization's operation in order to achieve the coordination of the human and material resources is essential in the efficient and effective attainment of objectives. Management is the process of working with and through others to effectively achieve the organizational objectives by efficiently using limited resources in changing environment. ये बहुत करनी है ये अच्छा लगा सुन के तो स्पेलिंग में डाल सकते हैं अगर याद करना है तो उसकी बात बताइए management is essential for a organization like a small profit making profit or non-profit service or manufacturing. Okay. Management consists of a series of interrelated functions that are performed by all managers. Later in the chapter, you will understand all the other functions. Different levels, the time spent by managers in different functions, however, is different. Managers at the top level spend time planning and organizing, then managers at the lower level. ऊपर के लोग प्लानिंग ऑर्गेनाइजेशन ज़्यादा करते हैं मिडिल के लोग स्टाफिंग डायरेक्शन ज़्यादा करते हैं कंट्रोल ऊपर वाले लोग करते हैं मिडिल के लोग नीचे वाले लोग मोस्टली डायरेक्टिंग करते हैं डायरेक्टिंग नीचे वाले लोग भी करते हैं सुपरवाइजिंग का काम है etc. Management is a very popular term and has been used extensively for all types of activities and we taking charge of different activities in any enterprise. As you have seen in the example to study the management activity which is necessary when wherever there is a group of people working on an organization. People in organization are performing diverse tasks but they are all working towards the same goal. So towards the same goal. Okay? Management aims in guiding their efforts toward achieving a common objective, a goal. Thus, management has to see the tasks are complete and goals are achieved effectively with the least amount of resources and minimum costs. Okay? So this is what do we mean by management effectively and efficiently काम करना होता है. What is mean by effectiveness? That the tasks are completed and the goals are achieved. And efficiency means that it should take the least amount of resources and minimum cost. Okay. Management has therefore been defined as a process of getting things done with the aim of ये सबसे अच्छी definition है. ये तुम बड़ी ये वाली याद करो ना मेरे चलो सर आइए
management has been defined as a process of achieving goals, getting things done with the aim of achieving goals effectively and efficiently. The green one. Actually, we need to analyze this definition. There are two certain terms which require their elaboration. They are process, B efficiently, and C, effectively, C efficiently. Process. Process means the primary functions or activities that management performs to get things done. तो प्रोसेस के बारे में सिलेबस में कुछ काम नहीं है इसलिए मैं छोड़ देता हूँ. So these functions are planning, organizing, starting, directing, controlling, which we'll discuss in the later chapter of the book. Blah blah blah. Being effective or doing work effectively basically means finishing the doing task. Effective management is concerned with doing the right task, completing activities and achieve goals. In other words, it is concerned with the end result. सीधी बात. Effectiveness is concerned with the end result. ठीक है. But it is not enough just to complete the task. There is another aspect also, being efficient, or as we say, doing work efficiently. सिर्फ काम करने की बात नहीं होती है, उसे जल्दी भी करना पड़ता है, मैंने कॉस्ट पे करना पड़ता है. अब मैं ये वाला चैप्टर लेके बैठ जाऊँ, आपको पूरे दिन ये चैप्टर पार नहीं करता, हम बार बार 4 बार एग्जाम्पल दूँ, हर चीज को रोक के आपको एक्सप्लेनेशन देने लगे, है ना. जो इफ यू आर सीइंग इट, some would be thinking कि ये इतने जो उसका वैसे अच्छा नहीं करो. We are supposed to do things effectively as well as efficiently. Considering that the board is 2-3 days later, I took the decision to read the chapters because I think it will refresh everything in my mind, and I will get more things to write in the exam so that my copy will look like filled up, right? And it's not that मैं अभी से like अभी पढ़ने से कर, right? So there's a difference. And मैं एक ही चैप्टर पे इतना टाइम नहीं लगता. Efficiency means doing the task correctly and with minimum cost. Correctly भी है. There's a kind of cost benefit analysis involved in the relationship between inputs and outputs. Cost और benefit analysis है कि मैं कितना टाइम दे रहा हूँ इस चैप्टर को और इससे मेरे को कितना आउटपुट मिलेगा. बिजनेस एनवायरनमेंट चैप्टर मेरे ख्याल से 4 मार्क्स का है, तो मैं उसे 3 टाइम दूँ. If the inputs if by using less resources, less inputs, more benefits are derived, then efficiency has increased. ठीक है. कम टाइम देके ज्यादा चैप्टर ऑफ कोर्स यहाँ पे एफिशिएंसी भी काम आती है, साथ में इफेक्टिवनेस भी काम आती है. मैं वहाँ पे 10 मिनट के बिजनेस स्टडी भी 10 मिनट के वन शॉट होता है ना. वो पढ़ के एक ही दिन में 1 घंटे में पढ़ के खुश हो जाऊँ कि मैंने पूरा बिजनेस पढ़ दिया. बट आई हैव नॉट डन द गोल effectively, राइट. यहाँ पे इफेक्टिवनेस हम पड़ेगा. और अगर मैं एक ही चैप्टर पे टाइम देने लगा देन एफिशिएंसी हम पड़ेगा. देख लेते हैं लाइव चल भी कैसे कि नहीं चल रहा है. मैं डाउनलोड कर दिया हूँ. जस्ट इट विल टेक नॉट मोर देन 1. थोड़ा वो तो मेरे को भी अच्छा नहीं लग रहा है एक्चुअली. जो आवाज है I will get the next one actually. That user problem is saying okay to अबे यार मैंने यहाँ से ये हटाया ही नहीं. कितना बड़ा पागल है ना. चलो कोई बात नहीं, जो हो गया सो हो गया. सिलेबस का वो हटाना रहता. चलो मैं हाईलाइट पे पॉइंट वापस से बता देता हूँ. ठीक है. Successful organization do not achieve their goal by chance, but by following a deliberate process called management. Management is essential for all the
organization, big or small, profit or non-profit, service or non-profit. Management has therefore been defined as a process of getting things done with the aim of achieving goals effectively and efficiently. Effectiveness is concerned with the end result being efficient, or as we say, doing work efficiently means doing the work correctly and with minimum cost. There is a kind of cost benefit analysis involved in the relationship between inputs and outputs. If by giving less inputs you are getting more outputs, then it's good, you are increasing efficiency. Management has to see that the tasks are completed and achieved not only effectively but also efficiently. That is, there should be least amount of resources spent on that work. Okay? Effectiveness versus efficiency. We all the time there's a tussle between it. Effectiveness मैं एक चैप्टर को ही पूरा रगड़ के पढ़ जाऊँ सब याद कर दूँ एंड एफिशिएंसी इज कि मैं कम से कम टाइम में करूँ मैं 10 मिनट में एक चैप्टर बता दूँ और छोटे 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 में काम करूँ what we need to make is a balance between them, right? And that balance could be subjective. These two terms are different, but they are interrelated. For management, it is important to be both effective and efficient. Effectiveness and efficiency are both two sides of the same coin. क्या बात है क्या क्या मजा सही तो मजा So these two aspects need to be balanced and management at times has to compromise with efficiency. For example, it is easier to be effective and ignore efficiency, complete the given task but at a high cost, as I gave you the example, right? हाँ ठीक है इसमें एग्जाम्पल दिया मैंने भी तुम्हें एग्जाम्पल दे दिया तो सेम थिंग एट टाइम्स द बिजनेस में concentrate more in producing goods with fewer resources, cutting down costs but not achieving the target production. Consequently, the goods do not reach the market and meet the demand for them the clients. Yeah, so effectiveness and efficiency needs to be balanced so that the business grows. This is the case of being efficient but not effective, since the goods did not reach the market. Therefore, it is important for management to achieve goal that is effectiveness with minimum resources, and that is as efficiently as possible, while maintaining a balance between effectiveness and efficiency. ये तो पूरा कंक्लूजन ही हो गया फुल कंक्लूजन है पूरी स्टेटमेंट कंक्लूड कर usually high efficiency is associated with high effectiveness, which is the aim for managers, but undue emphasis on high efficiency without being effective is also not desired. ठीक है तो आप अगर 10 मिनट में चैप्टर करके अपने आप को 30 मिनट का समझ रहे हो तो गलत समझ रहे हो Now we come to the characteristics of management. The management is a goal-oriented process. इसका हमें कोड में आता है GPM CGD like an organization is set up as a goal for the basic reason for its existence, right? Basic goals की वजह से organization चल रहा है. These will be simple and clearly stated. Okay, बैटरी कम हो गई है यार. अच्छा है मैंने वो मार्केटिंग में बोला. Which are the basic reason for existence. These will be clearly, simply stated. Different organizations have different goals. For example, the goals of retail store may be to increase sales, but the goal of spastic society often be asked to impart education with special needs to children with special needs. Managing unites the efforts of different individuals in the organization toward achieving these goals. ये मैनेजमेंट का काम ये है unite the effort of different individuals in the organization towards achieving goals. तो ये अगर चलो पेंग कर देता हूँ वैसे मन नहीं मेरा छोड़ो नहीं करना so basically management related process है so before doing management for something you should have a goal with what you want to achieve right I think book said so तो तुम खुद लिख सकते हो इस सवाल में तो लैंग्वेज है ना मैनेजमेंट डेवलपर वैसे भाई सबको करना पड़ता है हमको टाइम मैनेजमेंट करना पड़ता है बिजनेस को बिजनेस मैनेजमेंट करना पड़ता है मॉनिटर को क्लास को मैनेज करना पड़ता है फुटबॉल को स्कूल को मैनेज करना पड़ता है मतलब एज अ मतलब जितना उसका काम है प्रिंसिपल को स्कूल को मैनेज करना पड़ता है राइट तो सबको अपना अपना मैनेज करना पड़ता है
मैनेजमेंट इज लाइफ ब्रो। कहाँ चला जाता है? The activities involved in managing enterprise are common to all organizations, whether economy, social, and political. A petrol pump needs to be managed as much as a hospital or as a school. What as a what Germany or Japan क्या बोलता है? What manages to in India? The USA, Germany और जापान is the same. How the two of them will be quite different. सब अपने अपने तरीके से करते हैं. The difference is due to the differences in culture, tradition, and history. तो देखो भाई मैनेजमेंट इज ऑल परवेज भाई हर जगह है. ठीक है. क्या है मैनेजमेंट मल्टी डायमेंशनल. क्यों है मल्टी डायमेंशनल? तो मैनेजमेंट किस किस का करना पड़ता है? वर्क का करना पड़ता है मैनेजमेंट. ठीक है. पहली बात तो वर्क का करना पड़ता है. All organization exist for the performance of some work. ठीक है. In a factory, a product is manufactured. In a government store, a customer's needs is satisfied. And in a hospital, patient is treated. Management translates क्या बोल रहा है? This work in terms of goals to be achieved and assigns the means to achieve it. ठीक है. तो इस काम को मैनेजमेंट गोल बना देता है एंड फिर रिसोर्सेज असाइन करता है ताकि ये काम हो जाए. मैनेजमेंट ऑफ पीपल. पीपल को भी मैनेज करना पड़ता है यार. बहुत परेशान करते हैं पीपल तो. हाँ, पूरा चैप्टर है भी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट. ह्यूमन रिसोर्सेज और पीपल आर ऑर्गेनाइजेशन को टेस्ट ऐसे सबसे बड़े एसेट है कि काम तो वो करना ना. Despite all developments of technology getting work done through people, it is still a major task for manager. बट अब देखो धीरे धीरे कम हो रहा है यार. मैनेजमेंट का प्रोफेशन भी थोड़ा कम हो रहा है बिकॉज टेक्नोलॉजी पे इतनी डिमांड नहीं लग रही है. टेक्नोलॉजी आधे काम कर ले रही है तो मैनेजर मैनेज करेगा तो लोगों को ना. it it implies dealing with employees as individuals as diverse nature of behavior. It also means dealing with individual as a group of people. देखो कितनी कितनी हार्ड चीज है. लोगों को इंडिविजुअल की तरह भी देखना तो उनकी नीड्स और ताकि आप उनकी नीड्स और प्रेफरेंसेस को समझ सको. है ना. और फिर लोगों को कैसे देखना है? ग्रुप ऑफ पीपल को देखना है ताकि काम को अपन निपटा सके. हाउ हार्ड दिस इज. मैनेजमेंट इज वेरी डिफिकल्ट. मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस. देखो हम लोग तो मैनेजमेंट पढ़ते हैं. पढ़ने से मैनेजमेंट नहीं आता. कर नहीं सकते. ज्ञान के लिए होता है. No matter what the organization, it has some basic product or services in order to survive. This require a production process, the flow of input. हाँ अब देखो ये बात है. सीधी बात बताता हूँ. अगर क्वेश्चन आया कि मैनेजमेंट का ये बताओ. अरे तो क्या होगा? कैरेक्टरिस्टिक्स बताओ. तो आप इसके अंदर इतना नहीं घुसना. ये बस इतना बता देना वर्क का पीपल का ऑर्गेनाइजेशन का WPO करना पड़ता है. मल्टी डायमेंशन का वरना आपका बहुत बड़ा क्वेश्चन होगा. GPMCVD है वैसे हिसाब पॉइंट है. आप देखो कंटिन्यूस प्रोसेस है और मैनेजमेंट पूरे टाइम करना रहता है. जब तक जिंदगी में मर नहीं आती तब तक करना पड़ता है. The process of management is a series of continuous composite but separate functions. वाह क्या बात कर रहे हैं. Continuous composite but separate functions, namely planning, organization, directing, staffing, controlling. ये थोड़ा हमने वो गलत करते हैं सीक्वेंस. कोई बात नहीं. चल ये फंक्शन से संबंधित है इसमें परफॉर्म फिर से देख लेता हूँ. सिस्टम चल रही है. Simultaneously performed by all managers. Uh, you may have observed that um, Smita at Namchi designer candles perform several different tasks in a single day. Some designers spend ठीक है एग्जाम्पल दे देता है. क्या कहूँगा एग्जाम्पल का. मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी. चलिए ग्रुप एक्टिविटी है मैनेजमेंट.
An organization is a collection of diverse individuals for different needs. Every member of a group has a different purpose for organizing, for joining the organization. But members of the organization they work towards fulfilling the common organization goals. This requires teamwork and coordination of individuals in a common direction. भैया देखो सबकी अपनी अपनी नीड होती है लेकिन जब अपन मैनेज करते होते हैं जब हम एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सभी कॉमन गोल के लिए काम कर रहे होते हैं वो बात समझ रहे हैं थोड़ा सा और चेंज कर दिया मैंने ताकि पूरा फिलअप हो जाए फिलअप हो रहा है वो तो रहा चलो ये बात भी हो गई आगे बढ़ते हैं मैनेजमेंट इज अ डायनामिक फंक्शन management is a dynamic function and has to adapt itself to the changing environment adopt sorry अगर adopt होगा जो भी होगा adopt नहीं होगा adopt ही होगा organization interacts with its external environment which consists of social, economic, political factors in order to be successful. An organization must change itself and its goals according to the needs of people and the environment. ये तो हम बेसिक में अच्छे से पढ़ चुके हो ठीक है मैगडी का एग्जांपल दिया है मैगडी खाओ नहीं मैगडी के बारे में पढ़ो मैनेजमेंट इज एन इंटेंजिबल फोर्स इसके ऊपर केस स्टडी बनता है मैनेजमेंट इज एन इंटेंजिबल फोर्स that cannot be seen, but its presence can be felt in the way the organization functions. The effect, the effect of management is noticeable in an organization where targets are met according to plans, employees are happy and satisfied, and there is orderliness instead of chaos. इसकी बात समझो देखो मैं बता रहा हूँ ये इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं थोड़ा सा टाइम ले रहा हूँ इस पर वो आपको एक पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन दे देगा जिसमें या तो एक एनवायरनमेंट में सब बेकार जा रहा होगा तो वो पूछेगा कि यहाँ पे दिक्कत क्या है ना तो यहाँ पे कमी किस चीज की है तो वो कहेंगे मैनेजमेंट की कमी सब अपने अपने में काम कर रहे हैं कोई ऑर्डरली नहीं है या तो वो आपको बढ़िया सा एक एनवायरनमेंट मतलब वो दे देंगे मतलब जहाँ पे सब अपना काम कर रहे हैं एम्प्लॉय भी हैप्पी हैं सब बढ़िया बढ़िया चल रहा है ऑर्डरलीनेस है तो वो कहेंगे कौन सी यहाँ पे मतलब कौन सी फोर्स काम कर रही है मैनेजमेंट है इंटेंजिबल फोर्स है मैनेजमेंट ऐसे दिखने में कुछ नहीं है मान लो पता लोग बहुत से कहते हैं कि आप मैनेजमेंट करते क्या मैनेजर करते क्या मैनेजर को कोई काम नहीं सही बात है मैनेजर कोई टेक्निकल काम नहीं करता बट मैनेजर को होने से वहाँ पे एक ऑर्डरलीनेस आती है जो कि अगर नहीं होगी तो सब अपना अपना दौड़ेंगे और कुछ काम नहीं होगा दैट इज व्हाई मैनेजमेंट इज इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट मतलब से ओएसपी होता है ऑर्गेनाइजेशनल सोशल और पर्सनल अब ऑर्गेनाइजेशनल के अंदर होता है हाँ सर्वाइवल प्रॉफिट ग्रोथ एसपीजी होता है तो ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट है और ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव सोशल ऑब्जेक्टिव पर्सनल ऑब्जेक्टिव management is responsible for setting and achieving objectives of the organization. It has to achieve a variety of objectives in all areas, considering this interest of all the stakeholders, including shareholders, employees, customers, and the government. The main objective of any organization should be to utilize human and material resources to maximum possible advantage to fulfill the economic objectives of a business through survival, profit, and growth. ठीक है मतलब management is responsible for setting objectives and achieving objectives for the organization. अब यहाँ पे ऑब्जेक्टिव्स बहुत अलग अलग टाइप के हो सकते हैं बिकॉज हमको देखो कस्टमर्स का भी ध्यान रखना है गवर्नमेंट का भी ध्यान रखना है और स्टेक होल्डर्स का भी ध्यान रखना है तो बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ हाँ तो सबसे पहले तो ये सर्वाइवल करना है इसको मैं सिंपली बता देता हूँ ठीक है सबसे पहले तो सर्वाइवल होना चाहिए इतना प्रॉफिट बनाना चाहिए
ताकि बिजनेस सर्वाइव कर पाए. Then there's profit. Mere survival is not enough for business. Management has to ensure that the business makes a profit. तो सिर्फ मतलब ऐसे सर्वाइव करके काम नहीं होने वाला. आपको क्या है, प्रॉफिट भी बनाना है. नाउ there's profit. सबसे पहले आपको अपना सर्वाइवल देखना रहता है, फिर आपको अपना प्रॉफिट देखना रहता है. फिर आप कहोगे कि अब एक तो प्रॉफिट से काम नहीं होगा, अब हमें ग्रोथ करनी है सर. अगर आप देखो ग्रोथ नहीं करोगे इन द लॉन्ग टर्म, तो आपका बिजनेस डाउन टर्न ले लेगा, विच इज एन एक्चुअल थिंग. ठीक है. मैनेजमेंट हैज टू इंश्योर दैट द ऑर्गेनाइजेशन मेक्स प्रॉफिट. ठीक है. तो रंगा बना दिया मैंने, पता नहीं चलिए इसका. Profit provides an incentive for the continued operation of a business. ठीक है. प्रॉफिट इज एसेंशियल फॉर कवरिंग कॉस्ट एंड रिस्क ऑफ द बिजनेस. देखो रिस्क भी होता है बिजनेस में. अगर आप सिर्फ सर्वाइवल पे चल रहे हो, एकदम से कुछ आ जाएगा, तो आप रिस्क नहीं हैंडल कर पाओगे. ठीक है. फिर क्या है, ग्रोथ है ना. बिजनेस नीड्स टू ऐड टू इट्स प्रॉस्पेक्ट्स. जितना है वैसे रखो तो नहीं चलता. ऐड टू इट्स प्रॉस्पेक्ट्स इन द लॉन्ग रन. ये लॉन्ग रन की बात है. But this is important for the business to grow. To remain in the industry, management must be exploit fully the great potential of any organization. Growth of a business can be measured in terms of sales volume, increase in the number of employees, etc. etc. The number of products produced and the capital needs. And now organizational objective इतने थे. अगर social objective, ठीक है. social objective क्या है देखो. अच्छा कितना टाइम हो गया, 27 minutes into the video. So it's taking 3 minutes for every chapter, for every page. It involves the creation of benefit for society. As a part of society, every organization, whether it is business or non-business, has a social obligation to fulfill. ठीक है. ये थोड़ा इम्पोर्टेंट वाला है, ये थोड़ा कम इम्पोर्टेंट वाला है. This refers to consistency creating economic value for various constituents of society. Consistently creating economic value है ना. It is in this includes um, using environment-friendly methods of production, giving environment opportunities to the underprivileged people, societies, like providing basic amenities, schools, healthcare, etc. Communities, the box below. Social responsibility की बात हो रही है इसकी. एग्जाम्पल दीजिए कुछ सारे. पर्सनल objective. This is not personal objective. This is personal objective. ठीक है. There is a difference. थोड़ा सा देख लेते हैं स्ट्रीम से चल रहे कि नहीं चलते. चलो बढ़िया है. स्ट्रीम मतलब बढ़िया तो नहीं है, चल रहा है, लेकिन सुनना भी चाहिए. Personal objective. Organizations are made up of people who have different personalities, background, experience, and objectives. They all become part of the organization to serve a purpose. Their needs vary from financial needs such as comfortable salaries and all social needs such as peer recognition, high-level needs such as personal growth and management has to reconcile personal growth with the organizational objectives. ठीक, सबसे टफ काम है. तो लोगों के भी काम पूरे करना है और मैनेजमेंट का भी काम पूरा करना है. ठीक है. लोगों को क्या है, पर्क्स चाहिए, सैलरी चाहिए और बड़ी बड़ी पोस्ट चाहिए, है ना, इज्जत चाहिए, सिक्योरिटी चाहिए, एंटरटेनमेंट भी चाहिए, है ना. बिजनेस को क्या है, कॉस्ट काटनी है. बिजनेस को अपनी कॉस्ट काटनी है, ब्रांड वैल्यू बनानी है, प्रोडक्ट अच्छा होना चाहिए, क्वालिटी होनी चाहिए प्रोडक्ट में, है ना. ज़्यादा लोग काम ना करें ताकि कॉस्ट कम आए. ठीक है. दोनों को समझना पड़ता है. इंपॉर्टेंस नहीं है. मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग ग्रोथ गोल्स.
इसका मैंने बनाया था, क्या बनाया था, गुडपिड बनाया था, GID PID, नहीं GID PD। ग्रुप गोल्स अचीव करने में मदद करता है। देखो यहाँ पे तुम एक चीज देखना, ये है, अच्छा, हाँ, मैनेजमेंट इज गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है ना। और फिर अब ये क्या कर रहा है, मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग ग्रुप गोल्स, इट इज रिलेटेड टू दैट। फिर क्या है, मैनेजमेंट इंक्रीजेस एफिशिएंसी, मैनेजमेंट क्रिएट्स अ डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन। अभी डिटेल में पढ़ूंगा, चिंता नहीं। हेल्प्स इन अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स, देखो ये पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स वाला है और ये पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स, सो ये उसी पॉइंट को अब इम्पोर्टेंस बना देंगे हम, ठीक है। डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी अभी बताते, सोशल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस है ना, तो ये ऑब्जेक्टिव्स और फीचर्स को मिला के बना दिया हमने इम्पोर्टेंस। डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन भी यहीं पर लिखा था, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स हैं भाई, प्रॉफिट बनाना है, सर्वाइवल करना है, तो डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन से मतलब डायनामिक एनवायरनमेंट से बचना पड़ेगा, एफिशिएंसी इंक्रीज करता है, ठीक है। अच्छा, रीड करने का भूल गया मैंने, रिकॉर्ड पर एक्सेल फॉर अचीविंग द गोल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, द टास्क ऑफ मैनेजमेंट इज टू गिव अ कॉमन डायरेक्शन टू द इंडिविजुअल एफर्ट इन अचीविंग द ओवरऑल गोल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। देखो सब लोग, देखो गो एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें लोगों को बुला लिया, ठीक है, लेकिन अब उनके पास कुछ है ही नहीं, क्या करेगी ऑर्गेनाइजेशन, अगर आप समझ रहे हो तो, है ना। तो सब लोग अपने हिसाब से काम करने लगते हैं, उन्हें पता ही नहीं करने का, बस ऑर्गेनाइजेशन की गोल को वो करना, तो केओस हो जाएगा पूरा। इसलिए मैनेजर चाहिए जो तुम्हें बताएगा, जो खुद देखेगा कि कैसे कैसे क्या करवाना चाहिए, फिर वो तुम्हें बताएगा तुम ये निकल लो, तुम निकल लो, तुम निकल लो, तुम निकल लो, तुम्हें इतने सारे सामान दे देंगे, तो तुम भी खुश, ऑर्गेनाइजेशन भी खुश, गोल अचीव इफेक्टिवली एफिशिएंटली, दिस इज द वर्क ऑफ मैनेजमेंट। Management increases efficiency. The aim of a manager is to reduce cost and increase productivity through better planning, organization, directing, staffing, and controlling the activities of the organization. मैनेजमेंट एफिशिएंसी बढ़ा देता है ना। तो पहले क्या है, ये तो इफेक्टिवनेस एफिशिएंसी है। पहले क्या है कि ग्रुप गोल्स अचीव हो गए, अचीव होना, गोल्स अचीव किसका काम है, इफेक्टिवनेस का काम है। अब ये एफिशिएंसी का काम बता दिए। डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन का काम हो गया, ये ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव से उठा लिया, ये सर्वाइवल वाले, सॉरी, हाँ ये उससे उठा लिया, पर्सनल ऑब्जेक्टिव से उठा लिया, ये सोशल ऑब्जेक्टिव से उठा लिया। तो इफेक्टिवनेस एफिशिएंसी और ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट से बन गया अपना इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। A manager motivates and leads his teams in such a manner that individual members are able to achieve personal goals while contributing to the overall organizational objective। जैसे मैंने आपको वही बताया, सिंपल चीज है, बार बार रिपीट हो रहा है, थ्रू मोटिवेशनल लीडरशिप। तो वो क्या करता है कि भाई, मतलब अगेन द वर्क ऑफ मैनेजर, कि मैंने आपको बता दिया ये काम करना है, तो आप करो तो मैं आपको ये सैलरी दे दूंगा, और सब मिलकर काम करेंगे, तो वो ऑर्गेनाइजेशन का गोल भी अचीव हो जाएगा। हेलो, think that there's a lot of noise from back, but क्या ही कर सकते हैं, है तो है। ये वाला कौन सा पॉइंट है, डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी, मल्टीपल ऑब्जेक्टिव्स to serve the purpose of different groups that constitute all, fulfilling all the management helps development of organization through the development of society, it helps provide good quality products। हाँ वही है, आप एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी करो, जो लोग, मतलब स्पेशली एबल्ड लोगों को नौकरी भी दे दो,
थोड़ा सा सोसाइटल एक्टिविटी पूरी कर लो, एंगेज कम्युनिटीज दे दो लोगों को, स्कूल स्कूल खोल लो, वही है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। नेचर मैनेजमेंट इज एज ओल्ड एज सिविलाइजेशन। क्या बात है, मैनेजमेंट जितनी सोसाइटी पुरानी है उतना मैनेजमेंट। अगर आप बोर हो रहे हो तो मैं क्वेश्चन कर सकता हूँ कि सुनाई दे दो, ठीक है। इतने चैप्टर्स ऐसे पढ़ने की आदत नहीं है, बोल 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 के। Although modern organization are of recent origin, activity has existed the time of recent ancient civilization. In fact, organization may be considered the, the distinguished feature that has separated civilized society from an uncivilized one. The earliest management practices were a set of rules and regulations that grew out of the experience of governmental. Hello, hello, hello. I hope the voice is better now. Um, from uncivilized ones. The earliest management practices that grew out of the experience of government and commercial activities. The development of trade and commerce actually led to the development of management practices and principles. The term management today has several different connotations that highlight the different aspects of the nature. The study of management has evolved over a period of time along with the modern organization based on both on the experience and practices of management and a set of theoretical relationships. Over a period of time, it has grown into a dynamic subject with its own special characteristics. However, one question that needs to be addressed pertaining to the nature of management is whether it is a science or an art or both. In order to answer this, let us examine the feature of both science and arts and let's see how far management fulfills them. So basically, it is talking about that management भाई इतना पुराना है, जितनी सोसाइटी पुरानी है उतना मैनेजमेंट पुराना है। मैनेजमेंट पहले से करे जा रहे हैं, लेकिन अब जैसे मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन है वो अपनी तरफ से अपनी तरह से मैनेजमेंट करते हैं। बट तब भी हमें को पता करना चाहिए कि मैनेजमेंट एक आर्ट है या मैनेजमेंट एक साइंस है। तो अब हम क्या करेंगे, हम आर्ट की कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे, हम साइंस की कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे और फिर देखेंगे कि मैनेजमेंट क्या है, ज्यादा आर्ट है कि साइंस है। देखो, मैनेजमेंट इज अ प्योर आर्ट एंड मैनेजमेंट इज एन इनएग्जैक्ट साइंस। दिस इज कंक्लूजन। और अब हम थोड़ा पढ़ लेते हैं। What is an art? Art is the skillful and personal application of existing knowledge to achieve desired results. It can be acquired through study, observation, and experience. Since art is considered with personal application of knowledge, some kind of ingenuity and creativity is required to practice the basic principles learned. What is an art? आर्ट सिर्फ वो नहीं है कि आपने कुछ पढ़ लिया तो आप वो कर रहे हो। आर्ट इज कि आप कैसे उसे कर रहे हो, इंजेन्युइटी यानी क्रिएटिविटी से रिलेटेड ही है। और एक क्रिएटिविटी चाहिए होती है कि जो आपने पढ़ा है उसके बेसिस पे आप क्या अलग क्या कर रहे हो। आप बेसिक फीचर ऑफ आर्ट बता रहे हैं, थ्योरेटिकल नॉलेज होती है, ठीक है। आर्ट प्रीसपोजेस कि भाई देखो थोड़ा सा थ्योरेटिकल नॉलेज है, एक्सपर्ट इन द रिस्पेक्टिव एरियाज हैव डिजायर्ड सर्टेन बेसिक प्रिंसिपल्स, थोड़े प्रिंसिपल बना दिए गए हैं, है ना। अब लिटरेचर हो, डांसिंग हो, पब्लिक स्पीकिंग हो, एक्टिंग हो, तो उसमें प्रिंसिपल बना दें, थोड़ा सा पढ़ा देते हैं, थोड़ा सा समझा देते हैं, तो थोड़ी सी थ्योरेटिकल नॉलेज तो होनी चाहिए, समझ गए। नाउ दिस पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन। आर्ट अगेन ये नहीं है कि आपने स्कूल में पढ़ लिया, आपने स्कूल में गाना सीख लिया तो आप सीख गए गाना। इट इज पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन, ठीक है। To dancer, to speaker, to actor, to writer will always differ in demonstrating their art. अब जैसे एप्पल है, साइंस की बात करते हैं, एप्पल है, वो कह रहे हैं अगर अर्थ पे एप्पल है तो वो गिरेगा जमीन की तरफ, ठीक है। दिस इज अ यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट। अब चाहे जौन सा एप्पल हो, जहां का एप्पल हो, चाइना का हो, म्यांमार का हो, गिरेगा तो जमीन पर ही ना। सो दिस इज साइंस, दैट्स यूनिवर्सल। बट आर्ट क्या है कि चाइना का अपनी तरह से गाना गाएगा, म्यांमार का अपनी तरह से गाएगा, इंडिया में तो 100 तरीके के गाने वाले वैसे ही हैं,
है ना। जहाँ स्टेट में चले जाओ उसकी अपनी कल्चरल डाइवर्सिटी है, कल्चरल फोक सॉन्ग्स है, कल्चरल लैंग्वेज भी है बहुत जगह, है ना, इंडिजिनस लैंग्वेजेस है। तो आर्ट इज डिफरेंट, आर्ट इज पर्सनलाइज्ड, राइट। नाउ इट्स अगेन बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी। पहले दिन सीखने के बाद आप सीख नहीं जाते हो कि पूरा सीख गए आप लोग, अब तो हम ही बादशाह हैं, राइट। ऐसा नहीं होता है। अब इसे क्या ही पढ़ना है यार, सिंपल चीज लिखिए। दिस इज नॉट इवन यार जो एग्जाम में आने वाला है कि मैं पढ़ूं उसे। मैनेजमेंट कैन बी said to be art as it satisfy the following. A successful manager practices the art of management in day-to-day job of managing an enterprise based on study, observation and experience. तो ये सब फालतू की चीज है। मेन चीज है कि भैया देखो लिटरेचर बना हुआ है, चलो मैं ऐसे नहीं पढ़ा रहा, इसको मैं ऐसे बता देता हूँ। यहाँ पे निका एग्जिस्टेंस ऑफ थियोरेटिकल नॉलेज। देखो मैनेजमेंट का भी बहुत सारा थियोरेटिकल नॉलेज है, ये बुक है वो एक पार्ट है उस थियोरेटिकल नॉलेज का, ठीक है। तो बुक्स हैं, एग्जिस्टेंशियल नॉलेज है, थियोरेटिकल नॉलेज है, सो देयरफॉर देयर इज एग्जिस्टेंस ऑफ थियोरेटिकल नॉलेज। इसीलिए देखो मैनेजमेंट एक आर्ट के हो, मतलब एक फीचर तो उसका आर्ट पे आ गया है, ठीक है। तो एक फीचर तो आ गया है। फिर क्या, वेरी story of profound management thinker which prescribes certain universal principles. A manager applies the scientific methods on the body of knowledge to a given situation. गिवन सिचुएशन पे काम करता है, ठीक है। ऐसे नहीं है कि आपने मतलब प्रिंसिपल बता दिया और हो गया मैनेजमेंट। अगर ऐसे ही होना होता ना तो मैनेजर को इतने पैसे नहीं मिल रहे होते जितने आईएम्स लोग देते हैं, आईएम्स में जाके मिलते हैं वो। देखो a good manager works through a combination of practice, creativity, imagination, initiative and innovation. वाह क्या बात कही है। तो अपना एप्लीकेशन डिफरेंट होता है, पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन होता है, ठीक है। क्रिएटिविटी काम चाहिए होती है। और फिर ये आ गया है कि यहाँ पे पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन का होगा, है ना। कहाँ लिखा होगा, हाँ। A manager applies this acquired skills knowledge in a personalized and skillful manner in the light of the realities of a given situation. समझ रहे हो, पर्सनलाइज्ड मैनर में करता है, पर्सनलाइज्ड एंड स्किलफुल मैनर डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन। देखो ये सब अगर आपको वर्ड्स थोड़े पता होंगे, इन द लाइट ऑफ, अब आप डिपेंडिंग ऑन सिचुएशन नहीं बोलोगे, अब आप कहोगे इन द लाइट ऑफ द गिवन सिचुएशन। थोड़ा अपनी लैंग्वेज को भी अगर थ्योरेटिकल बुक जैसा बना दोगे तो आपको अगर बुक को पढ़ने की जरूरत नहीं, मतलब पढ़ने की तो जरूरत पड़ेगी, याद कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। The best managers are committed and dedicated individuals, highly trained and educated, with personal qualities such as ambition, self-motivation, creativity and imagination, and desire for development of the self of the organization they belong to. All management practices are based on the same set of principles. What distinguishes a successful manager from a less successful one is the ability to put these principles into practice. अब क्या है, मैनेजमेंट एज अ साइंस। साइंस क्या है भाई, साइंस इज अ सिस्टमेटाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज that explains certain general truths or the operation of general laws. Science is very different. वैसे से ग्रीन नहीं करना चाहिए, ये कोई मस्ट याद करने वाली चीज नहीं है। द बेसिक फीचर ऑफ साइंस आर एज फॉलोज। ये तो कुछ और ही बता दिया यार। हाँ, सिस्टमेटाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज जैसे बताया। अब इस पॉइंट का एक्सप्लेनेशन क्या ही चाहिए पड़ेगा यार, पता नहीं क्यों इतना लिख देते हैं। सही बात है यार, बोरिंग तो है एनसीईआरटी। Science is a systematic body of knowledge and principles have based on cause and effect relationship. Cause and effect relationship पर based है भाई साहब, ठीक है। फॉर एग्जांपल फिनोमेनन ऑफ एन एप्पल फॉलिंग। अरे वाह, मेरे को लगा मेरे को इतना अच्छा एग्जांपल कहाँ से आया एप्पल फॉलिंग का, यहाँ से आया। सोचो कब पढ़ा था, अभी तक याद है लेकिन मेरे को ये याद नहीं था बुक से। देखो एप्पल फॉलिंग है ना टाइम, है ना, तो अब वो कहीं भी गिरेगा तो गिरेगा ही भाई वो, ठीक है। प्रिंसिपल बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंटेशन। देखो एक्सपेरिमेंटेशन पे बेस्ड ना प्रिंसिपल, ऐसे मजाक में नहीं बना दिया, ठीक है। एप्पल गिरना है तो उन्होंने 100 बार देखा होगा कि एप्पल गिर रहा कि नहीं गिर रहा,
वैसे तो नहीं देखा, बट आई एम टेलिंग, मतलब मोस्टली ऐसे देखे जाते हैं, बार बार ट्राई करके देखे जाते हैं, ऐसे ही नहीं बना दिए जाते हैं, ठीक है। नाउ अब क्या है, यूनिवर्सल वैलिडिटी। तो पूरे यूनिवर्स, मैंने कहा ना पूरे यूनिवर्स में तो नहीं, जैसे अब वो ग्रेविटी का है, तो ग्रेविटी हर जगह एप्पल तो नहीं गिरेगा, लेकिन हर जगह ग्रेविटी अप्लाई हो रही होती है। कहीं पे ग्रेविटी नहीं है तो वो भी ग्रेविटेशनल लॉ है कि भाई अगर कहीं ग्रेविटी नहीं है तो वहां पे ग्रेविटी अप्लाई नहीं होगी ऑफकोर्स। क्या बोल रहा हूँ यार मैं, फालतू की बात है। बेस्ड ऑन द फीचर वी कैन से दैट मैनेजमेंट हैज सम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साइंस। भाई देखो मैं भी बोल बोल के थक गया, अब थोड़ी टीचरों की वो समझ में आती है, जो टीचर बोलते रहते हैं ना, कितना थक जाता हूँ। देखो मैनेजमेंट भी सिस्टमैटाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज है, मैनेजमेंट भी इस चीज में साइंस है बिल्कुल, है ना। इट हैज इट्स ओन थ्योरी एंड प्रिंसिपल्स दैट हैव डेवलप्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, है ना। बट इट आल्सो ड्रॉज फ्रॉम अदर डिसिप्लिन्स। देखो इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, मैथमेटिक्स, इस सबसे थोड़ा थोड़ा लेता है। फिलोसफी यहाँ पे नहीं लिखा, है ना, वो साइकोलॉजी में थोड़ा थोड़ा आ जाएगा। जैसे अभी मेस्लोज की नीड से हमने थोड़ा सा लिया है मैनेजमेंट में, है ना। लाइक ऑल द अदर ऑर्गेनाइज्ड एक्टिविटी, मैनेजमेंट हैज इट्स ओन वोकेबुलरी ऑफ टर्म्स. For example, all of us discuss sports like cricket and soccer using a common vocabulary. The players also use these terms to communicate with each other. Similarly, managers need to communicate with each other with the help of certain vocabulary. देखो भाई मैनेजमेंट की भी अपनी vocabulary है, जैसे सब चीजों की होती है, अपना वर्बैटिम है उनका, है ना। The principles of management have evolved over a period of time based on repeated experimentation and observation and different types of organization. तो देखो यहाँ पे क्या है, एक्सपेरिमेंटेशन भी चल रहा है, लेकिन यहाँ पे बात आती है कि मैं मैनेजमेंट एग्जैक्ट साइंस क्यों है, मैनेजमेंट इन एग्जैक्ट साइंस क्यों है। कि बात ये है कि साइंस में क्या है, एप्पल गिराओगे तो एप्पल गिरना ही है, सेम तरीके से गिरेगा। मैनेजमेंट में क्या एक्सपेरिमेंट होता है, लेकिन हर बार थोड़ा अलग अलग वो मिलता है, थोड़ा अलग अलग, है ना। So, however, since management deals with human beings and human behavior, the outcomes of these experimentation are not capable of being accurately predicted or replicated. Accurately नहीं होता, थोड़ा मोड़ा इधर उधर होता रहता है। तो therefore, management can be called an inexact science. ठीक है, inexact science है मैनेजमेंट। इस वाले में थोड़ा बड़ा वो बना है मैंने, पता है मेरे को, लेकिन ये थोड़ा वो है ना, पूरा याद भी हो गया होगा अभी तक, इसके बाद कभी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 48 मिनट्स हो गए हैं, 15 पेज पे हैं। 15:30-45, 3-3.5 मिनट लग रहा है एक चैप्टर, एक पेज में। Since the principles of management are not as exact and as principle of science, the application, हाँ देखो एप्लीकेशन भी यूनिवर्सल नहीं है, हर जगह मॉडिफाई करना पड़ता है ड्यू टू गिवन सिचुएशन, है ना। हाँ बस इतनी, वो छोड़ो, वो हाउएवर वाला पॉइंट तो सही है, लेकिन जरूरत नहीं पड़ेगी एग्जाम। हाउएवर दे प्रोवाइड मैनेजर्स विद अ स्टैंडर्डाइज्ड टेक्निक दैट कैन बी यूज्ड इन डिफरेंट सिचुएशन। देखो थोड़ा सा फ्रेमवर्क तो दे दिए देते हैं, हाँ, लेकिन पूरा नहीं बता सकते ना, पूरा बता देते तो फिर मैनेजर्स की जरूरत नहीं पड़ती। हाँ तो इस जो भी हमने बकवास करी है अभी, इससे आपको ये समझ में आ होगा कि मैनेजमेंट थोड़ा सा आर्ट भी है, थोड़ा साइंस भी है ना। However, managers can work better if their practice is based on the principles of management. These principles constitute the science of management. Management as an art and a science are therefore, हाँ देखो कितनी अच्छी बात कही है यार, कितनी अच्छी बात कही कि ये लड़ो नहीं यार, तुम भाई लड़ क्यों रहे हो कि नहीं 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 साइंस है मैनेजमेंट, नहीं 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 आर्ट है मैनेजमेंट। तुम कहो मैनेजमेंट को साइंस की तरह भी देखो, मैनेजमेंट को आर्ट की तरह भी देखो, ये कॉम्प्लीमेंट करते हैं एक दूसरे को। मैनेजमेंट की साइंस को समझो और मैनेजमेंट को आर्ट की तरह अप्लाई करो, है ना। दिस इज कॉम्प्लीमेंट टू ईच अदर।
अब मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन, ये तो बेकार सा लगता है मेरे को, पढ़ने में मजा नहीं आता. You have understood so far that all forms of organized activity need to be managed. You would also have observed that organizations look for individuals with specific qualification and experiences to manage them. देखो मैं थक गया हूँ लेकिन मैं कर रहा हूँ बिकॉज करना पड़ता है, क्योंकि देखो मेरे को पढ़ना तो है ही है, अब मैं स्ट्रीम करूँ ना करूँ, पढ़ना तो पड़ेगा ही. It has also been observed that there has been an increase in the corporate form of business on the other hand, no, on the one hand, and increasing emphasis on managed business concern. Does this imply that management is a profession? क्या भाई मैनेजमेंट एक प्रोफेशन है? To answer this question, let us examine the salient feature of a profession and see whether the management satisfies them. चलो भैया मैनेज अब क्या है प्रोफेशन के कैरेक्टरिस्टिक्स आएंगे. तो देखो वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज है. All professions are based on well-defined body of knowledge that can be acquired through instruction. देखो सेम चीज को इसने फिर से बोल दिया है बस थोड़ा सा चेंज करके. ये तुम्हें पता करना चाहिए. देखो ये एक लाइन का सेंटेंस इसने 4 लाइन में बना दिया. कैसे बनाया? ऑल प्रोफेशंस, ये प्रोफेशन वाली बात डाल दी. ऑल प्रोफेशंस आर बेस्ड ऑन अ वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज. अब थोड़ा सा और अपने हिसाब से बना दिया, दैट कैन बी एक्वायर्ड थ्रू इंस्ट्रक्शन. ऐसे बढ़ाना आना चाहिए. Restricted entry. The entry to a profession is restricted through an examination or through acquiring an educational degree. For example, to become a CA, आपको ICI का एग्जाम देना पड़ता है भैया, पूरा खत्म करना पड़ता है. CA फाउंडेशन, इंटरमीडिएट, फाइनल, है ना, जो कि आधे लोग कर नहीं पाते हैं. प्रोफेशनल एसोसिएशन, आप प्रोफेशनल जैसे ही आप सीए बनते हो उसका मतलब क्या है? आप आईसीआई से एक्रेडिटेड हो कि हाँ भैया ये बंदा चार्टर्ड अकाउंटेंट है. मतलब ऐसे वो नहीं करना है, इससे मजाक नहीं करना. All professions are affiliated to a professional organization which regulates, grants certificate of practice and formulates a code of conduct. Code of conduct भी बनता है भैया, है ना. तो देखो सीए का आईसीआई बनाती है और लॉयर्स का बार काउंसिल बनाती है. अब क्या है? एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट. एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट होता है, वही कोड ऑफ कंडक्ट वाली लाइन को वापस बना दिया. तो कोड ऑफ प्रोफेशनल लोगों का कोड ऑफ कंडक्ट बना हुआ होता है पहले से ही, ठीक है, जो गाइड करता है कि कैसे आपको काम करना है, मेंबर्स को, डॉक्टर्स को. अब क्या है? सर्विस मोटिव है. प्रोफेशन को लोग फॉलो क्यों करते हैं? ताकि आप एक सर्विस प्रोवाइड कर पाए, ठीक है. द बेसिक मोटिव ऑफ अ प्रोफेशन इज टू सर्व देयर क्लाइंट्स इंटरेस्ट बाय रेंडरिंग डेडिकेटेड एंड कमिटेड लॉयर्स. जैसे कि आपने डॉक्टर सदाव के केस में देखा था इंग्लिश में, उसका सर्विस मोटिव था, वो डॉक्टर था तो उसने डॉक्टर का काम करा चाहे जहां का भी आदमी हो, ठीक. उनकी उसने बताया था उनकी प्लेज होती है ना, उनकी ओथ लेनी पड़ती है उन्हें एक. Management does not meet the exact criteria of a profession, however it does have some features of a profession. देखो exact criteria follow नहीं करता, यानी मैनेजमेंट एक प्रोफेशन नहीं है बेसिकली, बट थोड़ी मोड़ी सिमिलैरिटी हैं, वो हम देख लेते हैं. ऑल ओवर द वर्ल्ड देयर इज अ मार्क्ड growth in management as a discipline. It is based on a systematic body of knowledge comprising well defined principles based on a variety of business situations. This knowledge can be acquired at both colleges and professional institutes and through a number of books and journals. The subject of management is taught at a different institutions. Some of these have been set up with a specific purpose of providing management education, such as IIMs. देखो ये तो पूरा पढ़ना बनता ही है ना यार. हुँ? इसके लिए तो जी जान लगा रहे हैं, इसके लिए तो सब कुछ कर रहे हैं. ये नहीं पढ़ा तो क्या करा. पूरा रंग बिरंगा कर दूंगा ऐसे तो मैं, ठीक है. पूरा डार्क ही कर दूंगा.
कौन सा कलर बच रहा है? लाइट ब्लू बच रहा है, लाइट ब्लू भी कर दिया। और बताओ। पिंक बच रहा था। ठीक है, आई एम तो ब्लैक ही कर दिया मैंने, वो आई एम ब्लैक ही में जाऊंगा अब मैं। ब्लैक ही मीन्स, अगर किसी को ना पता, बैंगलोर, लखनऊ, अहमदाबाद, कलकत्ता, कोझीकोड और इंदौर। दीज आर द टॉप 6 आई एम्स। तो ब्लैक ही में जाऊंगा मैं। There is no restriction on anyone being designated or appointed as a manager in any business. हाँ, तो देखो रिस्ट्रिक्शन नहीं है, देखो यहाँ पे बिल्कुल ही गलत हो जाता है। एक पॉइंट तो बिल्कुल ही गलत हो जाता है, ठीक है। रिस्ट्रिक्शन नहीं है कोई। प्रोफेशनल में क्या होता है, रिस्ट्रिक्शन वगैरह होते हैं, है ना, वैलिड डिग्री आपको चाहिए पड़ता है। मैनेजमेंट तो भाई, ये सभी करते हैं, मैनेजमेंट में क्या रिस्ट्रिक्शन, है ना। आई एम लोग डिग्री दे देते हैं एमबीए की, बट कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि भाई तुम ही आया एमबीए हो तो तुम ही करोगे। अब ये क्या है, ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन है, ये थोड़े से कोड ऑफ कंडक्ट तो निकालती है, बट क्या मतलब ऐसे कोई वो नहीं है ना, पक्की बात नहीं है कि आपको देखो कोड ऑफ कंडक्ट को फॉलो करना ही पड़ेगा, है ना। और बेसिक पर्पस ऑफ मैनेजमेंट है कि भैया ऑर्गेनाइजेशन का काम पूरा करो, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन करो, है ना। लेकिन ये नहीं है कि देखो सिर्फ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन है एज द ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट, डज नॉट होल्ड ट्रू एंड इज फास्ट चेंजिंग। वो चेंजिंग तो हो रहा है, ठीक है। Therefore, if an organization is good management, a team effectively and efficiently automatically serves the society, providing good quality products at reasonable prices. ये क्या कहना चाह रहा है कि देखो भाई, मैनेजमेंट का ऐसे कोई डायरेक्ट गोल नहीं है कि हमें सर्विस प्रोवाइड करनी है। मैनेजमेंट का क्या है, ऑर्गेनाइजेशन के गोल पूरा करना है। मैनेजमेंट का बेसिक पर्पस ये है कि स्टेटेड गोल है, अब हमें इसे पूरा करना है, जी जान लगा देनी है पूरी। तो अब ये गोल मोस्टली प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन होता है, लेकिन फिर कहते हैं कि ये सिर्फ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन गोल नहीं है, और ये चेंज हो रहा है आजकल के जमाने में, ये सब चेंज हो रहा है, ठीक है। और दूसरी बात यह है कि देखो प्रॉफिट मैक्सिमाइज करने के चक्कर में और नो एक अच्छी सी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन खड़ी करने के चक्कर में लोगों का अपने आप भला कर देते हैं। सर्विस टू द सोसाइटी तो हो ही रही है ना। तो दिस इज हाउ इट इज सेड कि अगर इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली एक अच्छी सी ऑर्गेनाइजेशन बन रही है, तो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी वगैरह और सोसाइटी को सर्व करना वगैरह वो तो हो ही जाता है, अपने आप हो जाता है ना। अब यहाँ पे लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट है, फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट है, फिर कोऑर्डिनेशन के बारे में है, फिर कोऑर्डिनेशन की इम्पोर्टेंस है। देखो बचा तो है ये 1.5 घंटा खा जाएगा, मतलब अब नहीं, और अभी जितना 1.5 घंटे का चैप्टर जाएगा ये। मन तो मेरा नहीं कर रहा है। चलो करते हैं। Levels of management. Management is a usual and universal term used for certain functions performed by individuals in an enterprise who are bound together in a hierarchy of relationships. Every individual in the hierarchy is responsible for successful completion of a particular task. To be able to fulfill that responsibility, he is assigned a certain amount of authority on the right to take a decision. Authority responsibility relationships. अथॉरिटी कहाँ लिखा है? मैं थोड़ा सा चेक कर लेता हूँ लाइव से ही जा रहा है कि नहीं जा रहा, ठीक है। हाँ सही ही जा रहा है। ओ, थोड़ा सा ब्रेक लेने के लिए माफी। आई एम जस्ट ऑन अ ब्रेक।
ठीक है। Management is a universal term used for certain functions performed by individuals in an organization that are bound together in a hierarchy of relationships. Every individual in the hierarchy is responsible for successful completion of a particular task. ठीक है, तो ऑर्गेनाइजेशन एक हायरार्की में बंधी हुई होती है और हर आदमी का उसमें अपना टास्क डिफाइंड होता है, चाहे वो ऊपर का मैनेजर हो कि नीचे का मैनेजर हो, काम तो दोनों को करना ही है, दोनों नौकरी कर रहे हैं, नौकर है दोनों। To be able to fulfill that responsibility is assigned a certain amount of authority or the right to take a decision. This authority responsibility relationships bind individuals as superiors and subordinates and give rise to different levels in an organization. Generally speaking, there are three levels in the hierarchy of an organization. ठीक है, एक होता है टॉप लेवल मैनेजमेंट। दे कंसिस्ट ऑफ सीनियर मोस्ट एग्जीक्यूटिव। देखो यहाँ से क्वेश्चन आता है, वो आप कुछ भी बता देंगे और फिर कहेंगे कि ये टॉप लेवल है, मिडिल लेवल है कि जूनियर लेवल है, या फिर जो भी कहते हैं सुपरवाइजरी लेवल है, और फिर कहेंगे कि टॉप लेवल के कुछ काम बताओ या फिर टॉप लेवल की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो बताओ। तो वो अपन अभी देखते हैं, ठीक है। मोस्ट सीनियर एग्जीक्यूटिव्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन बाय वट एवर नेम दे आर कॉल्ड। तो हाँ, वही सीईओ कहते हैं उन्हें, वगैरह वगैरह जो भी कहते हैं, एमडी कहते हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर, प्रेसिडेंट, वाइस प्रिंसिपल, प्रेसिडेंट, जो भी मन कर रहा है वो कह दो, क्या जा रहा है। ठीक है, तो ये सब अगर लोग हैं, ये सब देख लो अपने आप ही, मेरा तो मन नहीं है वैसे हाईलाइट करने का। ये सब टॉप मैनेजमेंट होता है, ठीक है। अब इनके काम के देख रहे हैं। अ, ये क्या आ गया? Top management is a team consisting of managers from different functional levels, heading finance, marketing, etc. हाँ ठीक है, तो हर टाइप के ऑफर होते हैं, एग्जीक्यूटिव होते हैं, और वो लोग अपने अपने काम के हिसाब से इंटीग्रेट करते हैं चीजों को। These top level managers are responsible for the, हाँ अब ये काम की बात आई, responsible for the welfare and survival of the organization. They analyze the business environment and its implication for the survival of the firm. They formulate overall organization goals and strategies for their achievement. ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, बता रहा हूँ। They are responsible for all the activities of a business organization and for its impact on the society. इनमें से कोई भी लाइन उठ के आ जाएगी और कहेंगे कि बताओ कौन सा वो है ना, कौन सा ऑर्गेनाइजेशन, कौन सा क्या है, हाँ कौन से लेवल की बात हो रही है। The job of the top manager is a complex and stressful, demanding long hours and commitment to the organization. ये मजाक नहीं है, तो हमें लगता है अरे बस सीईओ बन गए, खाली बैठेंगे मजे करेंगे, नहीं, बहुत काम होता है और टेंशन भी होती है। मिडिल मैनेजमेंट इज a link between, अरे ये क्या बोल गया, is a link between top and lower level managers. They are subordinate of top managers and superior to first line managers. They are usually known as divisional heads. ठीक है, तो हर डिवीजन का हेड होता है, उसको क्या कहेंगे अपन, मिडिल लेवल मैनेजर। ये मैंने प्री बोर्ड में गलती करी थी, मैंने किसी को टॉप लेवल मैनेजर बना दिया था जबकि वो था डिवीजन हेड। ठीक है, तो ऐसी गलती आप मना करना, एक एक मार्क्स कीमती होता है। Middle management is responsible for implementing and controlling plans and strategies developed by the top management. क्या लिखा है? Middle management is responsible for implementing and controlling plans and strategies developed by the top management. देखो एक इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई। ठीक है, तो एनसीईआरटी में थोड़ा पैराग्राफ पैराग्राफ दे रखा है, लेकिन उसको पॉइंट बना के लिखना आपकी जिम्मेदारी है। ठीक है, at the same time they are responsible for all the activities of first line managers. फर्स्ट लाइन मैनेजर्स जो कर रहे हैं उसका ध्यान कौन रखता है? मिडिल मैनेजमेंट रखता है। Their main task is to carry out the plans formulated by the top managers.
ये तो ऊपर वाली चीज ही आ गई ना वापस। फॉर दिस दे नीड टू, हाँ देखो यहाँ पे तो इन्होंने पॉइंट ही बना दिए पूरे, तो ये तो पूरा ही समझने वाला बात है। इंटरप्रेट द पॉलिसीज ऑफ framed by top management, ensure that their department has the necessary personnel, assign necessary duties and responsibilities to them, motivate them to achieve the desired objectives, cooperate with other department for the smooth functioning of the organization। ऑर्गेनाइजेशन अभी नीचे लिखा होगा, अभी तो यहाँ पे नहीं लिखा, तो इसको क्या करें, ग्रीन कर देते हैं, काम की चीज लिखी है। ठीक है, तो क्या क्या है, पहले इंटरप्रेट करो, फिर देखो कि अपने पास लोग हैं काम करने के लिए नहीं है, फिर उनको ड्यूटी असाइन कर दो, फिर उनको मोटिवेट करो कि भाई करो काम, ऐसे थोड़ी होगा। फिर कहो कि कोऑपरेट कर, दूसरे डिपार्टमेंट के साथ कोऑपरेट करो ताकि काम अपना अच्छे से हो। यहाँ पे तो हमने ज्यादा ही रंग बिरंगा कर दिया इस पेज को, है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से कहीं से भी आ सकता है। आप टॉप लेवल का आ जाए तो टॉप का लिखना पड़ेगा, मिडिल का आ जाए मिडिल का लिखना पड़ेगा, सुपरवाइजरी का आ जाए सुपरवाइजर का लिखना पड़ेगा, तो सुपरवाइजरी, ऑपरेशनल और फर्स्ट लाइन, ये चार पांच तो इसके नाम ही है। अब इसमें देखो सिंपल बात है, देखो लोअर लेवल मैनेजमेंट है, लेकिन वो कहते कि अरे लोअर लेवल मैनेजमेंट कहना अच्छा नहीं लगता है ना, तो जैसे डिप्लोमेटिक लैंग्वेज बेसिकली, ठीक है, मुंह पे लोअर नहीं बोल पा रहे हैं तो कहेंगे क्या है, सुपरवाइजरी, ऑपरेशनल, तो बड़े बड़े नाम रख दिए ताकि इसको क्या कहते हैं, यूफेमिज्म कहते हैं, यूफेमिज्म, कि कोई हार्श चीज के ऊपर थोड़ा सा ऐसे वो नमक मिर्चा छिड़क के थोड़ा अच्छा सा उसे बना दो, खाने लायक बना दो, सुंदर बना दो। Foremen and supervisors comprise the lower level in the hierarchy of organization. Supervisors directly oversee, हाँ देखो यहाँ पे आ गया काम का काम, supervisor directly oversee, अरे यार क्या हो रहा है ये, supervisor directly oversee the effort of the workforce, their authority and responsibility, authority and responsibility is limited to the according to the plans drawn by the top management। टॉप मैनेजमेंट ने जो बनाया भैया वही काम करना है, ज्यादा मुंह नहीं चलाना है, ठीक है। बस यही है इन लोगों का काम, ज्यादा तो कुछ काम करते नहीं है, मजाक कर रहा हूँ, ठीक है। सुपरवाइजरी मैनेजमेंट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, देखो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं in the organization since they interact with the actual workforce and pass on instructions of the middle level management। तो भाई देखो मेन असली असली कोर जो काम है मैनेजमेंट का वो तो यही लोग कर रहे हैं ना, कि असली वर्कफोर्स से तो काम यही कर रहे हैं। मिडिल लेवल का क्या है, ऊपर से आया नीचे पास कर दिया, ये है मिडिल लेवल मैनेजर का काम, ऊपर से आया नीचे पास कर दिया, ऊपर से आया नीचे पास कर दिया। मेन काम तो ये वाले लोग कर रहे हैं कि, और सबसे हार्ड काम भी कर रहे हैं, क्योंकि ऊपर वाले तो पॉलिसी बना देते हैं, है ना, इन लोगों को ये चेंज भी नहीं कर सकते पॉलिसी, और वही काम इन लोगों को करवाना है। सो दिस इज मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट ऑफ मैनेजमेंट, आई थिंक सो, ओपिनियन है, ठीक है। अब देखो फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट है, ये तो यार पूरे चैप्टर ही हैं, तो पढ़ ही लेते हैं। देखो फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफ एंड डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। प्लानिंग इज द फंक्शन डिटरमाइनिंग, अरे ये क्या खुल गया, what is to be done and who is to do it, and this implies setting goals in advance and developing a way to achieve it efficiently and effectively। ये तो पूरा रट ही गया मेरे को तो, इतना इतना तो रट ही जाता है। पिंक क्यों यार, ऐसे तो ग्रीन करना चाहिए, काम की चीज है। हाँ अभी स्मिता का एग्जांपल है, हमें क्या करना है स्मिता से, ये देखो ये बना दिया इनने, अब देखो ये ट्रायंगल क्यों, चलो कमेंट में मत आना मैं क्या कर रहा हूँ, मैं भी बिल्कुल यूट्यूबर वाले काम कर रहा हूँ। चलो ये एग्जांपल इनने दे रखा है। अब ऑर्गेनाइजिंग हो गया, ऑर्गेनाइजिंग इज द मैनेजमेंट फंक्शन ऑफ, हाँ देखो अब ये देखो मैं तुम्हें एक चीज दिखाऊं, असाइनिंग ड्यूटीज, ग्रुपिंग टास्क्स, इसको कहते हैं, भूल गया मैं थोड़ा, डिपार्टमेंटलाइजेशन कहते हैं कल से, establishing authority and allocating establishing authority and responsibility relationships and allocating resources required to carry out a specific plan। ये एक्चुअली प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग है,
और इसी प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग को इनने बना दिया है डेफिनेशन ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। तो जब अपन पढ़ रहे होंगे ना, तो मैं आपको दिखाऊंगा कितना बढ़िया है ये। ठीक है, तो उसी को आप डेफिनेशन बना सकते हो, उसी को आप वो कर सकते हो। वंस अ स्पेसिफिक प्लान हैज बीन established for the organization of an organizational goal, the organizing function examines the activities and persons required to implement the plan and determines what activities and resources are required to achieve the plan and resources required. It decides who will do it, a particular task, where it will be done, and when it will be done. मतलब सब भाई डिसाइड करना पड़ता है, and when it will be done, what and when will it be done. Organizing involves a grouping of required tasks in manageable departments or work units. देखो इसी को डिपार्टमेंटलाइजेशन कहते हैं। ठीक है, डिवीजन ऑफ वर्क भी कहते हैं, मैं कल से ऑर्गेनाइजिंग पढ़ेंगे तब समझ में आएगा। ठीक है, ऑर्गेनाइजिंग इन्वॉल्व्स grouping of required tasks into manageable departments or work units and the establishment of authority and reporting। देखो फिर से वही आ गया, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये एक सीधा वो है, स्टेप ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। ग्रुपिंग ऑफ रिक्वायर्ड टास्क्स इनटू मैनेजेबल वर्क यूनिट्स, ये हो गया डिपार्टमेंटलाइजेशन। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। Proper organization techniques help in the accomplishment of work and promote both efficiency and effectiveness. Uh, different kinds of business require different structures according to the nature of work। हाँ, इसके बारे में आप लेटर पढ़ोगे कि देखो डिविजनल वाला होता है और एक फंक्शनल वाला होता है। Staffing, देखो simply stated, finding right people for the right job at the right time। ठीक है, important aspect of management है to make sure that the right people with the right qualifications are available। हाँ देखो right qualification, right places पे और right टाइम पे। यहाँ पे right लिखा नहीं है, वो एंड में उसने साथ में बना दिया। to accomplish the goals of organization, क्या करने के लिए, ऑर्गेनाइजेशन का गोल पूरा करने के लिए। दिस इज ऑल्सो नोन एज ह्यूमन रिसोर्स फंक्शन, such as recruitment, selection, placement and training of personnel। हाँ तो ये फिर से वही बताने लगा, ये अब स्टाफिंग किसने वो बता दी। अब क्या है डायरेक्टिंग। देखो मेरे को पता है, जो मैंने ये रीडिंग करने की बात कही है ना, सब रीड करूंगा। बहुत टफ टास्क चुन लिया मैंने अपने आप के लिए। 1 मिनट 13 सेकंड हो गए। Directing involves leading, influencing, and motivating employees to perform the tasks assigned to them. This requires establishing an atmosphere that encourages employees to do their best. Motivation and leadership are two components of direction। इतना अभी के लिए अच्छा है। ठीक है, बाद में डायरेक्टिंग चैप्टर पढ़ोगे तो पढ़ लेना, इतनी जल्दी क्या है यार। Directing also involves communicating effectively। सॉरी फॉर दैट, चलो कंटिन्यू करते हैं। Motivation and leadership are two key components of direction। कम्युनिकेटिंग भी काम है, सुपरवाइजिंग भी काम है।
Motivating workers means simply creating an environment that makes them want to work. Leadership is influencing them want to work. Leadership is influencing others to do what the leaders want them to do. A good manager directs through praise and criticism in such a way that it brings out the best of people. ठीक है, तो इन्हें थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी डेफिनेशन दे दी है। मोटिवेटिंग के लिए ऐसा एनवायरनमेंट बनाना पड़ता है। लीडरशिप के लिए उनको लीडरशिप जैसे मतलब ऐसे करना पड़ता है कि लीडर जो कहे वो कर पाओ तुम। उसके बाद क्या होता है, गुड मैनेजर क्या करता है, प्रेज भी करता है और क्रिटिसिज्म भी करता है। दिस इज द क्वालिटी ऑफ अ गुड मैनेजर कि वो एम्प्लॉय का बेस्ट निकाले, प्रेज भी करे थोड़ी सी और क्रिटिसिज्म भी करे, लेकिन एम्प्लॉय का बेस्ट निकलना चाहिए। Controlling is the management function of monitoring organizational performance towards the attainment of organizational goals. ये है कंट्रोलिंग, मॉनिटरिंग फंक्शन है कि भाई काम सही से जा रहा है कि नहीं जा रहा है। द टास्क ऑफ कंट्रोलिंग इन्वॉल्व्स, लो इन्हें पूरा प्रोसेसिंग बता दिया, कंट्रोलिंग प्रोसेस बता दिया। एस्टैब्लिशिंग स्टैंडर्ड ऑफ परफॉर्मेंस, देखो गिन लो क्या है, एस्टैब्लिशिंग स्टैंडर्ड ऑफ परफॉर्मेंस, मेजरिंग करंट परफॉर्मेंस, ये कंट्रोलिंग प्रोसेस है। Comparing this with establishing standards, फिर analyzing deviations or taking corrective action where any deviation is found. पूरा पूरा इन्होंने बता दिया। Here management wants to determine what activities, थोड़ा सा देख लें यार, वो बैटरी है अभी। Here management must determine what activities and outputs are critical to success. How and who should have the authority to take corrective action. The various functions are usually discussed in order to keep order given above, suggesting that a manager first plans, then organizes, then puts staff in position, then directs, and finally controls. In reality, managers are rarely able to carry out these functions in isolation. The activities of managers are interrelated and it often difficult to pinpoint where one ended and the other began. समझ रहे हो कि फंक्शन को पढ़ तो तुम ऐसे रहे हो सीक्वेंशियली, बट ये थोड़ा डिफाइन करना एक ऑर्गेनाइजेशन में आइसोलेशन में डिफिकल्ट होता है। वो हर चीज पूरे टाइम चल रही होती है एक तरह से, समझ रहे हो, हर एक्टिविटी ऑर्गेनाइजेशन की, सॉरी मैनेजमेंट की। ये अच्छा पॉइंट तो है लेकिन याद करने के लिए नहीं है यार, ये तो तुम वैसे भी लिख लोगे। थोड़ा सा मैं सेटिंग सही कर रहा था। चलो बात में वापस आते हैं। कोऑर्डिनेशन, द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। व्हाट इज कोऑर्डिनेशन? कोऑर्डिनेशन इज द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। अरे यार ये क्या क्या खोल लेता हूँ मैं, चैट नहीं करनी है यार मेरे को। कोऑर्डिनेशन, अरे क्या हो रहा है? कोऑर्डिनेशन इज द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। वाह ये अच्छा लग रहा है। You have understood by now that a manager has to perform 5 interrelated functions in the process of managing an organization, which is a system made up of different interlinked and interdependent subsystems. A manager has to link these diverse groups towards the achievement of a common goal. The process by which a manager synchronizes the activity of different departments is known as coordination. ये लो भाई डेफिनेशन मिल गई आपको। क्या है? Coordination is the process by which a manager synchronizes the activity of different departments. ठीक, कोऑर्डिनेशन इज द फोर्स। अब देखो यहाँ पे छोटी छोटी चीजें बहुत सारी आएंगी,
इसको पिंक पिंक कर देता हूँ मैं. Force that binds all the other functions. It is a common thread. एक common thread है that runs through all activities such as purchase, production, sales वगैरह वगैरह. ठीक है. तो common thread है, force है जो bind कर देती है. Ensure continuity in the working process. हाँ, coordination को sometimes consider करा जाता है separate function of management. बट बात यह है कि ये सेपरेट फंक्शन नहीं है भाई. कोऑर्डिनेशन हर जगह है. मैनेजमेंट की हर फंक्शन में कोऑर्डिनेशन है. ये एसेंस ऑफ मैनेजमेंट है कोऑर्डिनेशन. मजाक की बात नहीं है. ठीक है. एसेंस ऑफ मैनेजमेंट है. द अचीविंग हार्मनी अमंग इंडिविजुअल्स एफर्ट्स टुवर्ड्स द अचीवमेंट ऑफ ग्रुप गोल्स. मैनेजमेंट का एसेंस ही कोऑर्डिनेशन है. ठीक है. ईच मैनेजरियल फंक्शन इज एन एक्सरसाइज कंट्रीब्यूटिंग इंडिविजुअली टू कोऑर्डिनेशन. मतलब कोऑर्डिनेशन तो हाँ देखो यहाँ पे लिखा है इम्प्लिसिट एंड इनहेरेंट इन ऑल द फंक्शंस. ये तो भगवान है भाई. मैनेजमेंट का भगवान कौन? कोऑर्डिनेशन. तू तो देव मानुष निकला रे. हैं? मैं तो तेरे को समझता था. मैं तो तेरे को फंक्शन समझता था. तू तो देव मानुष निकला. तू तो एसेंस ऑफ मैनेजमेंट निकला. The process of coordinating the activities of an organization begins at the planning stage itself. ठीक है. प्लानिंग में ही शुरू हो जाता है कोऑर्डिनेशन और खत्म कभी नहीं होता. Top management plans the entire organization according to these plans. The organizational structure is developed and staffed in order to ensure that these plans are executed according to plans. Directing is required. Any discrepancies between actual and realized activities are then taken care of at the stage of control. It is through the process of coordination that a manager ensures the orderly arrangement of individual and group efforts to ensure unity of action in the realization of a common objective. बिल्कुल लीगल भाषा बोल दी गई है. अब तो मेरा मन नहीं हट रहा. मेरे को सबको पिंक करने का मन कर रहा है. It is through the process of coordination that a manager ensures that orderly arrangement of individual and group efforts to ensure the unity of action in the realization of common objective. And यहाँ पे जो इसने बोला ये पूरी पूरी मैनेजमेंट प्रोसेस बता दी भाई. पूरी मैनेजमेंट प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग स्टाफिंग डायरेक्टिंग कंट्रोलिंग सब बता दिया एक बार में बता दिया. इससे ज्यादा क्या चाहिए. लेकिन देखो ये सब याद करने के लिए नहीं है. ये सब अच्छे पॉइंट है. तो मैं कह रहा हूँ पढ़ो. मजा आएगा पढ़ के. Coordination therefore involves synchronization of the different actions of or efforts of the various units of an organization. This provides the requisite amount of quality, timing, and sequence of efforts, which ensures that planned objectives are achieved with a minimum of conflict. ठीक है. ज़्यादा हो जाएगा. Underline. Characteristics of coordination वैसे तो अगर ऐसे देखा जाए तो सिलेबस में नहीं है. बट वो मतलब कोऑर्डिनेशन का ही पार्ट है तो इसे हटाने की भी जरूरत नहीं है. मैं थोड़ा सा देख लेता हूँ स्ट्रीम का क्या चाल चल रहा है और ये भी देख लेता हूँ कितनी लंबी हो गई है. चलो चल तो रही है स्ट्रीम. 1 hour 24 minute. भाई साहब ये 2 घंटे जाओगे क्या. कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोऑर्डिनेशन. कोऑर्डिनेशन इंटीग्रेट्स ग्रुप एफर्ट्स. देखो ये तो मैनेजमेंट की बात आ गई. फिर से मैनेजमेंट की वो वापस आ गए है ना. तो मैनेजमेंट का याद करो. कोऑर्डिनेशन का अपने आप हो जाएगा. लेकिन फॉर द सेक ऑफ रीडिंग मैं रीड कर लेता हूँ. कोऑर्डिनेशन यूनिफाइज एंड रिलेट्स. देखो कोऑर्डिनेशन व्हाट इज कोऑर्डिनेशन. कोऑर्डिनेशन इज द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट. So all the characteristics of management, coordination also has. All the importance of management, coordination also has. Because it is the root, it is the essence of management. ठीक है. Coordination unifies and
unrelated or diverse interest into purposeful work activity. It gives a common focus to group efforts to ensure that performance is uh, as it was planned and scheduled. Coordination ensures unity of action. ठीक है, यूनिटी ऑफ एक्शन एश्योर हो जाता है. The purpose of coordination is to secure unity of action and the realization of common purpose. Common purpose पे लोगों को काम करवाने के लिए यही तो है coordination. It acts as a binding force between departments and ensures that all actions are aimed at achieving a common goal of the organization. ठीक है. Coordination is a continuous process. Continuous process है. यहाँ पे देखो मैनेजमेंट लगा दूं ना, यहाँ पे मैनेजमेंट लगा दूं, मैनेजमेंट इंटीग्रेट्स को एफर्ट्स, मैनेजमेंट एंश्योर्स यूनिटी ऑफ एक्शन, मैनेजमेंट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस. वो सेम ही है. कोऑर्डिनेशन इज नॉट अ वन टाइम फंक्शन बट अ कंटिन्यूअस प्रोसेस. ठीक है. इट बिगिंस एट अ प्लानिंग स्टेज, कंटिन्यूअस कंट्रोलिंग. इसमें तक एग्जांपल मैं नहीं पढ़ने वाला. ठीक है. कोऑर्डिनेशन इज एन ऑल परवेसिव फंक्शन. अब कुछ लोग कहेंगे यार देखो एग्जांपल से सही से समझ में आता है, बट द प्रॉब्लम इज मैं खुद तो एग्जांपल दे रहा हूँ ना यार, तो बस चुप रहो. कोऑर्डिनेशन इज एन ऑल परवेसिव फंक्शन. देखो ये अच्छी सी वो है, ये एग्जाम में आ जाएगी. In the exam absence of coordination, what results is chaos. तो यहाँ पे किस चीज की कमी है भाई? यहाँ पे कोऑर्डिनेशन की कमी है. सब अपने अपने में काम में व्यस्त है, किसी को कुछ समझ ही नहीं आ रहा है. ये देखो ये है, ये ऑर्गेनाइजेशन रिसेप्शन पे अपनी बातें कर रही है. यहाँ पे कॉल की घंटी बज रही है, कोई मतलब ही नहीं है. यहाँ पे स्टोर वाला बैठा हुआ है मजे में, स्टॉक फुल है, और यहाँ प्रोडक्शन में स्टॉक ही नहीं आ रहा है. जो स्टोर में बैठा है स्टॉक फुल करके, सेल्स हो नहीं पा रही है ना. अकाउंट में वो चोरी करके भग रहे हैं, रिपोर्ट बेकार है. तो ये इन्वेस्टर भगा दे रहे हैं. इन्वेस्टर भी हो सकते हैं, गवर्नमेंट भी हो सकती है, और शिपिंग इनकी इतनी बेकार है कि सब डूब ही जा रहा है माल. तो ये हालत होती है अगर कोऑर्डिनेशन नहीं होता है. ठीक है. So coordination is required at all levels of management due to the interdependent nature of activities of various departments and integrates the effort of different departments at different levels. Whether top level management है, तो जो है सारे लेवल के मैनेजमेंट को अपना काम करना पड़ता है और दूसरों के साथ कोऑर्डिनेट करके रहना पड़ता है. तो सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अकेले टॉप की नहीं है, अकेले मिडिल की नहीं है. ठीक है. और ये क्या है, कोऑर्डिनेशन इज अ डेलिबरेट फंक्शन, मैनेजमेंट इज अ डेलिबरेट फंक्शन, कोऑर्डिनेशन इज अ डेलिबरेट फंक्शन. तो वो मैनेजमेंट वाली चीजें हैं सारी. A manager has to coordinate the efforts of different people in a conscious and deliberate manner. ठीक है. तो भाई willingly cooperate करना पड़ता है. Coordination gives direction to the willing spirit. Cooperation in the absence of coordination may lead to wastage effort, and coordination without cooperation may lead to dissatisfaction among employees. Coordination therefore is not a separate function of management. देखो फिर से वही बात है, but it's very essence.
कोऑर्डिनेशन ही तो मैनेजमेंट है और मैनेजमेंट ही तो कोऑर्डिनेशन है। अब आता है इंपॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन इज इम्पोर्टेंट एज इट इंटीग्रेट्स एफर्ट्स ऑफ इंडिविजुअल्स। इंटीग्रेट करता है वही सेम चीज बार बार रिपीट, बार बार रिपीट, बार बार रिपीट। कम फर्स्ट बुक में तो यही है भाई, सेम चीज बार 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 बार। The primary reason for coordination is that departments and individuals of the organizations are interdependent. They depend on each other for information and resources, perform their respective activities. अच्छा देखो, एक नया तरीका मिल गया आपको अपनी बात को बढ़ाने का। आप क्या करोगे, कुछ भी आपने बड़ा सा वर्ड यूज करा, फिर उसी को एक्सप्लेन कर दोगे। दैट इज लगाओ, दैट इज लगा के एक्सप्लेन कर दो। ऐसे ही आपके छोटे छोटे सेंटेंस बड़े हो जाएंगे। बिना कुछ याद करे एक ही चीज से पूरा स्टेटमेंट बना के 4-4 लाइन का लिख दोगे। टीचर भी खुश, आप भी खुश, मार्क्स भी खुश, सब खुश, परसेंटेज भी खुश, कॉलेज वाले भी खुश। ग्रोथ इन साइज, ठीक है। तो ग्रोथ को फैसिलिटेट करता है कोऑर्डिनेशन, क्योंकि जब ग्रोथ हो रही होती है तो भाई अलग अलग टाइप के लोग आते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, तो उन लोगों के लिए कोऑर्डिनेशन बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। अब देखो मेरे को थोड़ा सा तो जल्दी करना पड़ेगा, वरना ऐसे तो यही वीडियो हो जाएगा सबसे बड़ा, है ना। तो थोड़ा सा मैं जल्दी करता हूँ। फंक्शनल डिफरेंशिएशन, देखो कुछ स्पेशलिस्ट आदमी होते हैं वो किसी की सुनते नहीं है ना, तो इन लोगों को थोड़ा सा बीच में कोऑर्डिनेशन वाला बंदा होना चाहिए, ताकि कोई भी कन्फ्लिक्ट जो होता है ना, अ, तो जब ऐसे अलग अलग फंक्शन अपने अपने काम कर रहा होता है ना, तो किसी को लगता है ये इम्पोर्टेंट है, किसी को लगता है ये इम्पोर्टेंट। मार्केटिंग वाला कहेगा कि मार्केटिंग पे स्पेंड बढ़ाओ, और कौन हो सकता है, और प्रोडक्शन वाला कहेगा कि प्रोडक्शन बढ़ाओ, प्रोडक्शन की क्वालिटी बढ़ाओ, डब्बों की क्वालिटी बढ़ाओ। प्रोडक्शन वाला कहेगा इस डब्बे में तो हमारा वही नहीं आ रहा, और मार्केटिंग वाला कहेगा ऐसा डब्बा बनाने से लोग बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव होते हैं, है ना, अट्रैक्टिव पैकेजिंग होती है। तो वही है। तो ऐसे लड़ाई होने लगती है। तो इसके लिए कोऑर्डिनेशन इंपॉर्टेंट होता है, एक बंदा होना चाहिए जो बीच में बैठ के अपना असली डिसीजन ले। इन लोगों को लड़ने मत दो, तुम डिसीजन लोगे, ठीक है। स्पेशलाइजेशन, अच्छा यहाँ पे स्पेशलाइजेशन वाला था, कॉन्फ्लिक्ट वाला मैं गलत ले गया, है ना। तो क्या क्या है थोड़ा फिर से देख लें। इंपॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन क्या है, पहली बात तो इंटीग्रेट करता है इंडिविजुअल एफर्ट को। फिर क्या है, ग्रोथ इन साइज, ग्रोथ करने में मदद करता है। फंक्शनल डिफरेंशिएशन होते हैं तो उसमें कोऑर्डिनेशन करने में मदद करता है। स्पेशलाइजेशन होता है, देखो स्पेशलाइजेशन क्या होता है, arises out of complexities of modern technology and diversities of tasks performed। तो अब जैसे कोई कोडिंग का स्पेशलिस्ट है, वो अपने ईगो में रहता है कि भाई देखो मेरे को तो कोडिंग आता है, तू तो कहता है, ठीक है। और वो किसी की नहीं सुनते, फिर वो कहते कि भाई मेरे को तो कोडिंग आती है, तू चुप रहे, ठीक है। मैं, क्योंकि मेरे को कुछ ऐसा आता है जो तेरे को नहीं आता, तो वो अपनी अपनी चलाते हैं, तो उन्हें चुप कराने वाला एक होना चाहिए कोऑर्डिनेटर। भाई देख प्रोफेशनल आदमी है, तो इसका मतलब ये नहीं है भाई तुम्हारे जैसे 100% और धन है, हटा देंगे तुम्हें। या आपने अपनी मत चलाओ, ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करो, ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करो, अपना काम करना है तो फ्रीलांसिंग करो, है ना। ऐसे सुनाने वाला भी कोई होना चाहिए। मैनेजमेंट इन द 21st सेंचुरी, भाई देखो पहली बात खत्म होने वाला चैप्टर, अब तो मैं खुशी मनाऊंगा थोड़ी, ठीक है। इतना बड़ा नहीं पता था मेरे को चैप्टर हो जाएगा। 1 1 hour 34 minute हो गए, 40 तक जाएगा जो चैप्टर। इसने तो भाई फेल ही कर दिया मेरे को। मेरे ख्याल से सबसे बड़ी लाइव स्ट्रीम यही हो गई है ना। क्या बात है। Even as you read the chapter, the organization and its management are changing. As boundaries between cultures and nations get blurred, new communication technology makes it possible to think of the world as a global village.
The scope of international and intercultural relationships is rapidly expanding. The modern organization is a global organization that has to be managed in a global perspective. What does this imply? बताओ भाई. This is a question. क्या बात है? देखो, लोग कहते हैं एनसीईआरटी बोरिंग है. ये क्वेश्चन पे जाके छोड़ दिया है इसने. ये बोरिंग होता है. अब तुम सोचोगे भाई. देखो, अगर बोरिंग नहीं समझना है तो नहीं सोचोगे, बट एज अ अगर इंटरेस्ट पढ़ रहे हो, व्हाट डज दिस इम्प्लाई? ये इम्प्लाई करता है कि कहीं भी बैठ के कोई भी आदमी कहीं का भी मैनेज कर लेगा, प्रोवाइडेड दैट he has knowledge of that particular culture or particular people and particular organization, and of course the area that he has been working in. मेरे मतलब मेरे जान पहचान में है. He is working in a Vietnam company and he is the manager. वियतनाम के लोगों को मैनेज कर रहे हैं यहाँ से. सो वर्क फ्रॉम होम है. सो ग्लोबल विलेज में कन्वर्ट हो रही है. ठीक है. व्हाट इज मेंट बाय मैनेजमेंट? बताओ भाई. अचीविंग गोल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली. फिर इफेक्टिव की डेफिनेशन दे दो, एफिशिएंट की डेफिनेशन दे दो कि करेक्ट वर्क टाइम पे हो, करेक्ट वर्क हो जाए, दैट इज इफेक्टिवनेस, एंड क्वालिटी मेंटेन रहे, वो भी इफेक्टिवनेस है. एंड मिनिमम कॉस्ट में मिनिमम टाइम में हो जाए, दैट इज एफिशिएंसी. नेम एनी टू इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट. कैरेक्टरिस्टिक्स कहाँ पे थे? सबसे ऊपर वाला था. मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग ग्रुप गोल्स. Management is a deliberate function. Management is all pervasive. Management is continuous. बस हो गया. कितने चाहिए? देखो 10% बैटरी हो गया मेरे ईयरफोन की. बस निकल रहा हूँ मैं. Identify and state the forces that binds all the other functions of management. वो coordination है of course. Test any two indicators. अच्छा, state भी करना है. तो coordination क्या होता है? It is the process of it is a process that is implicit and inherent in all the functions of management. It binds all the other functions of management. Uh, Coordination ensures that all the functions of management work together to achieve the organizational objectives effectively and efficiently. लेकिन चलो, बात जब आई है तो कोऑर्डिनेशन का एक मीनिंग एक और बार देख लेते हैं. वही है यार, स्पीड में पढ़ो, जब बिना मन के पढ़ो ना तो भूल ही जाते हो. तो मीनिंग ऑफ कोऑर्डिनेशन सही से याद नहीं है. हम्म. ये the process by which manager synchronizes the activity of different department. ठीक है भाई, सिंक्रोनाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें. ठीक है, तो ये थोड़ा सा मैं और हाईलाइट कर देता हूँ. सिंक्रोनाइजेस एक इम्पोर्टेंट कीवर्ड है, तो वो आपको याद रहना चाहिए, है ना. चलो, बहुत हो गया. मेरा मन तो था यार आज 4 चैप्टर खत्म करने का. देखते हैं, रात भी है अभी तो बाकी है. यहाँ पे बड़े बड़े केस स्टडी हैं, मेरे को नहीं पढ़ने. हाँ, आप मैनेजमेंट इज कंसिडर्ड टू बी बोथ आर्ट एंड साइंस. तो बताओ, तो आप उसमें बताओगे कि आर्ट की जगह आर्ट में क्या है? स्टडी ऑफ मतलब एग्जिस्टिंग ऑफ बॉडी ऑफ नॉलेज है. क्रिएटिविटी से काम करना पड़ता है और सबका अपना अपना तरीका होता है.
ठीक है। और स्किल, हाँ स्किल्स और टाइम देने से आता है, एक्वायर्ड स्किल है, और ये सब चीजें मैनेजमेंट में भी हैं। ठीक है। उसके बाद क्या हो गया, साइंस में क्या है, एग्जिस्टेंस ऑफ बॉडी, द सिस्टमेटाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज है, यहाँ पे भी है। वहाँ पे यूनिवर्सल वैलिडिटी है, यहाँ पे यूनिवर्सल वैलिडिटी नहीं है। और वहाँ पे क्या है, एक्सपेरिमेंटेशन से होता है साइंस में, यहाँ पे भी एक्सपेरिमेंटेशन से होता है, लेकिन एग्जैक्ट रेप्लिका नहीं आते हैं। ठीक है, थोड़ा सा चेंज होता रहता है। डू यू थिंक मैनेजमेंट हैज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ फुल फ्लेज्ड प्रोफेशन? नो भाई, बिल्कुल नहीं है ना। ना कोड ऑफ कंडक्ट है, मतलब कोड ऑफ कंडक्ट पक्का नहीं है, बैरियर टू एंट्री नहीं है, कोई भी बन सकता है मैनेजर। ठीक है। उसके बाद देखो, बॉडी ऑफ नॉलेज है, बॉडी ऑफ नॉलेज दोनों जगह है, सर्विस सर्विस मोटिव नहीं है। ठीक है, ये चीज होगा। A successful enterprise has to achieve its goals effectively and efficiently. Explain. तो यहाँ पे आप देखो क्या बताओगे, यहाँ पे आपको बताना है कि कनॉट प्लेस कैसे जाते हैं। तो आप ये नहीं बताओगे कि सिर्फ कनॉट प्लेस कैसे जाते हैं, आप कहोगे कि अगर हम लेफ्ट, मतलब मान लो सीधे है कनॉट प्लेस, तो आप ये नहीं बताओगे कि सीधे कनॉट प्लेस है, आप यही बताओगे कि लेफ्ट में जाओगे तो दिल्ली रेलवे स्टेशन आ जाएगा, राइट में जाओगे तो एयरपोर्ट आ जाएगा। ठीक है, इसीलिए कनॉट प्लेस यहाँ पे है, क्योंकि वो यहाँ पे भी नहीं है और वहां पे भी नहीं है। दिस इज द वे टू एक्सप्लेन अ बिगर पॉइंट, कि अब आप कैसे बताओगे कि सक्सेसफुल एंटरप्राइज हैज टू अचीव इट्स गोल्स इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। तो आप बताओगे अगर इफेक्टिवली में ही घुस गए तो क्या होगा, एफिशिएंसी नहीं होगी और ये दिक्कत आ जाएगी, और अगर एफिशिएंसी में ही घुस गए तो इफेक्टिव नहीं हो पाओगे, ये दिक्कत आ जाएगी। इसलिए दोनों साथ में करना पड़ता है। दिस इज हाउ यू विल एक्सप्लेन इट। मैनेजमेंट इज अ सीरीज ऑफ कंटिन्यूअस एंड इंटररिलेटेड फंक्शंस। कमेंट। हाँ तो वो पूरा बता देंगे, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। और पहले प्लान होता है, फिर उसके लिए ऑर्गेनाइजेशन करते हैं, फिर उसके लिए स्टाफिंग करते हैं, उस मतलब देखते हैं कि भाई लोग चाहिए तो ले देते हैं, फिर डायरेक्टिंग करते हैं, उन्हें मोटिवेटर वगैरह, लीडरशिप, सुपरवाइजिंग, अच्छा कम्युनिकेटिंग करते हैं, और फिर कंट्रोल करते हैं, देखते हैं, मॉनिटरिंग करते हैं कि भाई देखो सब काम सही से चल रहा है कि नहीं। और कोऑर्डिनेशन पीछे से पूरा बाइंड कर रहा होता है, इनहेरेंट फंक्शन है, इनहेरेंट इन ऑल द फंक्शंस है, जो कि इन सारे प्रोसेस को कोऑर्डिनेट कर देता है। और इंटरडिपेंडेंट फंक्शंस हैं, साइमल्टेनियस प्रोसेस है, लेकिन तब भी सेपरेट करके देखा जाता है। ठीक है, दिस इज हाउ यू विल एक्सप्लेन इट। बस ये भी थोड़े थोड़े बड़े क्वेश्चन है तो छोड़ देते हैं। एनसीईआरटी नॉट टू बी रिपब्लिश्ड, रैशनलाइज 2023-24। खत्म है भाई, खत्म है, मैं तो खत्म हो गया। 143 minutes। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई होप टू सी यू इन द नेक्स्ट वन। बाय बाय। देखो कितनी मेहनत कर रहा हूँ। बाय।